mechanics. In 11th standard, we had started with chapter number 1, which was talking generally about what is physics and its branches. Then we had taken chapter number 2, which was talking about general physics, units, dimensions, error theory, significant figures. So these were the topics of chapter number 2. And in chapter number 2, it was purely general physics pertaining to entire physics. Then we took portion of vectors. Vectors again a part of maths which we are using here. It's basically vector algebra we are studying, and its applications are there in physics, entire physics. So that was also a chapter of general physics. Now we come to specially about physics. Now I'll be starting the study of actual physics. Now we saw in chapter number 1 beginning that physics is a study of phenomena occurring around us. Physics is a study of all the phenomena occurring around us. In that, the very first phenomenon we take is motion. Motion is the most basic phenomenon happening around us. Now we are so that's the most basic phenomenon. So we will be starting with this phenomenon. Now to study motion, physics has dedicated a branch called mechanics. Mechanics is a branch of physics studying motion in details. Mechanics is further classified into two parts. Mechanics is study of motion. Now this motion is studied with respect to two angles. एक तो study purely about motion. Purely about motion. Purely about motion मतलब क्या? Study motion. Why it happened, why, from where, which factors, वो सब नहीं. Motion शुरू हो गया, start studying. That branch of the mechanics is called kinematics. So kinematics purely studies motion. And अगर इनके causes के पीछे पड़े, studying causes behind motion, and that branch is called dynamics. So mechanics के दो branches, kinematics and dynamics. Mechanics में we study the motion. Motion शुरू हो गया, उसके बाद की बात करें तो kinematics, and motion शुरू होने से पहले की बातें करें, why it happened, when, what factors were there, how to manipulate it, वो सब पढ़े तो dynamics हो गया. तो studying the motion purely once it has started, after that जो study करेंगे kinematics, and क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी बातें dynamics में करेंगे. So mechanics is a branch of physics studying motion with two sub branches, kinematics and dynamics. For us, study of mechanics starts from chapter number 3 to 8 and then 14 and 15. इतने chapters हैं हमारे पास. 6 plus 2 8 chapters. Out of 15 chapters, 8 chapters are pertaining to mechanics, जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे. Chapter number 3, 4, फिर 6, 7, 8, 6, 7, then 14 and 15 are pertaining to kinematics. And chapter number 8, 5 and 8, chapter number 5 and 8 are mainly connected to dynamics. तो 3, 4 motion की बातें करेंगे, फिर 5 में causes behind motion and dynamics की बातें करेंगे, फिर बाद में 6, 7 again we will study motion continued, and then dynamics chapter number 8, and last में 14, 15. ये सारे chapters motion की बातें करते हैं. So from this you can understand that इतने सारे chapters अगर connected to motion है, so you can understand the importance of studying the motion. 11th standard is mainly the study of mechanics. 11th standard is mainly study of mechanics. तो बोलोगे बीच के chapter जो छूट गए वो, उसमें भी 9th chapter properties of solids, 10th chapter properties of fluids, then 13th chapter property of gases. इनमें भी motion की बातें होगी. फिर बाद में chapter number 11, 12 वो हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, वो भी उसमें भी फिर मोशन की थोड़ी बहुत बातें आएगी. सो मोशन इज ओमनी प्रेजेंट इन द एंटायर फिजिक्स. पूरे फिजिक्स में 11 में मोशन को इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेसिक फिनोमेना व्हिच वी आर स्टडीइंग इन फिजिक्स. बिना मोशन के नथिंग इज पॉसिबल, उसी के बारे में यहाँ पे बात होती है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी ऑफ एक्चुअल फिजिक्स स्टडीइंग द फिनोमेना कॉल्ड मोशन. द ब्रांच कॉल्ड मैकेनिक्स हैविंग टू सब ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. So our next two chapter 3 and 4 are pertaining to motion. Basically motion है क्या चीज? What is motion? Motion के बारे में क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है. मोशन का स्टडी तो हमने चैप्टर स्टैंडर्ड 3rd 4th से शुरू किया था. 8th में उसको ज़्यादा डिटेल में लिया, 9th में और भी ज़्यादा डिटेल में लिया. तो मोशन है क्या चीज? तो उसके बारे में बोलेंगे. मोशन हम बोलते हैं कि मूविंग नहीं, मूविंग इज अ वर्ब फॉर मोशन. मोशन इज अ नाउन, मूविंग उसका वर्ब है. तो फिर मोशन के बारे में क्या बोलेंगे? तो मोशन मीन्स व्हेन अ बॉडी चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, यानी बॉडी एक पोजीशन से
दूसरी पोजीशन पे आए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आए विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ये विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या? बॉडी मूव कर रहा है कैसे, उसके बारे में बात करनी पड़े, किस सच में मूव कर रहा है कि नहीं वो देखना पड़े। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एंड यू कम टू नो अबाउट दिस पॉइंट मोशन के बारे में। मोशन इज changing position of a body with respect to some reference point। हाँ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज ये ट्रेन है, ट्रेन का एक बोगी, एक डब्बा है ट्रेन का, आगे भी ट्रेन पीछे भी ट्रेन। अब यहाँ पे खिड़की में देखते हैं, यहाँ पे एक बंदा बैठा है मिस्टर ए, एंड यहाँ दूसरा बंदा बैठा है उसके सामने मिस्टर बी। दोनों जने ट्रेन में बैठे हुए हैं, वन मिस्टर है, सेकंड मिस्टर बी, और एक तीसरा मिस्टर सी है जो बी को छोड़ने आया था। ये सी है जो बी को छोड़ने आया था स्टेशन पे। अब उससे तो बी को बैठा दिया अंदर, गाड़ी चली, ट्रेन इज मूविंग दिस वे। चलो सपोज ये अहमदाबाद से बॉम्बे जा रही है ट्रेन, ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे। सी क्या बोलता है, बी गया अहमदाबाद में, उसने छोड़ा है उसे, बॉम्बे पहुंच गया। सो सी सेज बी मूव फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे। सी ने क्या बोला, बी इज मूविंग फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे। ए का रिव्यू क्या होगा, ए का रिव्यू क्या होगा, नहीं वो मेरे सामने बैठा हुआ, ही नेवर मूव, पूरी रात वो यहीं बैठा, मैंने भी देखा उसे, गड़बड़ हो गई। सी बोलता है बी मूव कर रहा है, ए बोलता है नहीं वो मूव ही नहीं किया उससे, तो वो तो बैठा है। अब बी के बारे में सोचो तो, इज बी मूविंग और स्टेशनरी, बी मूव कर रहा है कि स्टेशनरी। ए ने बोला बी मूव नहीं कर रहा है, मेरे सामने ही बैठा है, कहीं नहीं गया। सी बोलता है नहीं वो अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रैवल कर दिया, he moved from अहमदाबाद टू बॉम्बे। अब बी के बारे में क्या बोलेंगे, इज ही स्टेशनरी और ही इज मूविंग। अगर आप बोलेंगे स्टेशनरी है, ए ने बोला बिल्कुल सही है स्टेशनरी है, तो सी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर अहमदाबाद से बॉम्बे कैसे पहुंचा। अगर आप बोलेंगे ये मूविंग है, तो सी सच बोल रहा है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, बी मूव कर रहा था, ये तो देखा ही नहीं उसको, क्योंकि ये तो बैठा है, ए ने बोला मेरे सामने ही बैठा है, मतलब ए इज टेलिंग है, तो मतलब या फिर ए गलत बोल रहा है या सी गलत बोल रहा है। अगर दोनों सही बोल रहे हैं तो बी के बारे में क्या बोलोगे, अब पर्सन इज स्टेशनरी एंड मूविंग आल्सो। ये तो टू हैव अ केक एंड ईट इट, दोनों चीज हुई, हैव अ केक एंड ईट इट, ऐसा कैसे हो सकता है, यू हैव अ केक एज वेल एज यू ईट इट। यहाँ पे वैसे ही बी के लिए, बी इज मूविंग आल्सो एंड स्टेशनरी आल्सो, ये कैसे हो सकता है। तो बी के बारे में जो बयान दोनों ने दिया, ए ने सी ने, दो में से कोई एक गलत है, बराबर है। पर आप तो बोलोगे नहीं ए की बात सही है कि सामने ही बैठा था, सी की बात भी सही है कि बी ए से अहमदाबाद से बॉम्बे गया, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई। तो यहाँ क्या गड़बड़ है, तो ओनली थिंग इज कौन कहाँ से इसे ऑब्जर्व करता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। द रेफरेंस फ्रॉम वेयर द पर्सन इज ऑब्जर्विंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सी के लिए देखो तो सी यहाँ पे स्टेशनरी है, स्टेशन पे, एंड बी उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, बी इज मूविंग इन रिस्पेक्ट टू सी। पर ए के रिस्पेक्ट में देखो तो ए के रिस्पेक्ट में बी स्टेशनरी है, बी स्टेशन रिस्पेक्ट टू ए, मतलब के whether the person is moving or stationary, whether the body is moving or it is stationary, that depends on who is observing and from where he is observing। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, द ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही यू कैन से whether the given body is stationary or moving। that is a concept of reference point। कौन कहां से कैसे ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। हम लोग उसको ऐसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बता देते हैं, ये सी का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया ओ एक्स वाई जेड, उसके रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जबकि ए का सिस्टम ले लें, ओ डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन फिक्स रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन्स फिक्स ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेन मूविंग फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे, बराबर है। तो ए के रिस्पेक्ट में स्टेशन है क्योंकि पोजीशन कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग, व्हाइल सी के रिस्पेक्ट में इट इज चेंजिंग एंड देयरफॉर दिस इज इन मोशन। यानी कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग एंड व्हिच डायरेक्शन यू आर ऑब्जर्विंग, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिफर्ड एज रेफरेंस फ्रेम।
उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। आप किस रेफरेंस से देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। फ्रॉम वेयर यू ऑब्जर्व एंड हाउ इन विच डायरेक्शन यू ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। एंड ये रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में जबरदस्त है, पूरी लाइफ रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड है। चलो हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो फिलहाल अभी रिसेंटली आपने 10th का एग्जाम दिया, 10th बोर्ड का एग्जाम दिया। मैथ्स के एग्जाम के बाद कुछ बच्चे बाहर आए रोते रोते या सीरियस मुंह के साथ में कि यार पेपर में मजा नहीं आया, इट वाज अ लिटिल बिट ट्विस्टेड पेपर एंड टफ पेपर, ऐसा बोला। जबकि कुछ बच्चे आए हो धमधमा के, आज तो फुल 100% स्कोरिंग है, 100% परफेक्ट पेपर गया है, इट वॉज अ वेरी इजी पेपर। अब सेम पेपर कुछ लोगों के लिए इजी था, कुछ लोगों के लिए टफ था। ये हमारे साथ भी होता है। 11 में भी हम लोग एग्जाम टेस्ट दे रहे हैं के बाद एक चैप्टर्स की और छोटे छोटे सेक्शंस की, कुछ लोगों के फुल 15 on 15 आते हैं, बोलते हैं पेपर वॉज डैम इजी। कुछ बेचारे 2-3 मार्क लाने में तकलीफ हो जाती है, वो बोलेंगे यार पेपर तो क्या पूछते हैं पता ही नहीं चलता है। आप पढ़ते हो फिजिक्स को, आप सोचते हो कि यार फिजिक्स पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है, पता नहीं निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और मैं बोलता हूँ फिजिक्स इज वेरी वेरी इजी, डैम इजी। ये सब्जेक्ट जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, सेम फिजिक्स मेरे एंगल से एकदम ईजी है, तुम्हारे एंगल से अरे यार पता नहीं ये तकलीफ कब खत्म हो गई। उसमें भी बी ग्रुप के स्टूडेंट तो खास बायोलॉजी वाले जो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो बोलते हैं जी का जंजाल है, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, हमें डॉक्टरी में कहीं काम नहीं आने वाला, फिर भी फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं हम लोग। दैट इज फॉर देम इट इज एन अनअवॉइडेबल न्यूसेंस। तो एक ही फिजिक्स अलग अलग एंगल से क्यों अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि हमारे देखने का नजरिया है। फिजिक्स मेरा पैशन है, पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, इससे मेरे लिए एकदम ईजी है। तुमने अभी शुरू किया नया नया, तो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट थोड़े तकलीफ वाले हुए। पहला चैप्टर तो चलो प्रॉब्लम नहीं था, दूसरे में थोड़ा न्यूमेरिकल्स आया तो तकलीफ हुआ, डायमेंशन में पहुंचे तब। वेक्टर्स तो 50% बाउंसर था, आज तक पता नहीं चला ये कब क्रॉस प्रोडक्ट तक डॉट प्रोडक्ट तक कॉन्सेप्ट आई के जे के कहाँ आप भाग रहे हैं, बराबर है। सो फॉर यू इट बिकम्स लिटिल बिट तकलीफ वाला। बी ग्रुप वालों को तो पहले से बताया गया कि तुम्हारे लिए बायोलॉजी इज द ओनली लाइफ, नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में स्कोर करना है, मेडिकल में सारा बायोलॉजी है, तो फिजिक्स तुम्हारे कोई काम का नहीं है। ये तो उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि फिजिक्स इज द वर्स्ट सब्जेक्ट एंड अनवर्दी फॉर यू। एक ही चीज अलग अलग एंगल से देखते तो अलग अलग दिखती है। वैसे ही पेपर के बारे में बात करते हैं, जैसे बात की कुछ लोगों को टफ लगता है, कुछ लोगों को इजी लगता है। पेपर टफ होता है या इजी होता है, पेपर तो सेम होता है। अगर आप प्रॉपर तैयारी करके बैठे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस वर्क करके बैठे हैं, तो फिर आपके लिए पेपर विल बी वेरी इजी इवन दो इट्स अ ट्विस्टेड पेपर। अगर आप खाली बुक को घूक के बैठे हैं, खाली बुक को पढ़ा है, बुक के बाहर सम्स किए ही नहीं, तो ऑब्वियसली पेपर थोड़ा तकलीफ वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के सम या थोड़ा भी आंकड़ा चेंज किया, वर्डिंग चेंज किया, यू कुड नॉट मेक इट, क्योंकि आपने तो बुक तैयार किया हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बोल दिया कि ये पेपर सेट आता है, इसको 10-10 बार लिख लो, इसी में से आने वाला है। बैड लक उनका के पेपर वॉज लिटिल बिट आउटसाइड दैट, तो गए वो तो बेचारे। कुछ लोग तो खाली मगअप करते हैं मैथ्स को, तो वो तो पूरे डाउन। तो देखो अलग अलग प्रिपरेशन थी अलग अलग स्टूडेंट की, इसलिए पेपर अलग अलग लगा, बाकी पेपर तो वही था, सेम पेपर वॉज सेम। वॉज इट ईजी और टफ? नहीं, दैट इज प्योरली द पर्सन हु ऑब्जर्व्स इट, ऐसी तैयारी के साथ बैठे हुए। इसलिए आपके बाद भी याद रखना, पेपर कभी टफ या इजी नहीं होते, वो तो आपकी प्रिपरेशन है जो पेपर को इजी या टफ बनाती है। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रैक्टिस, देन द पेपर इज वेरी मच इजी फॉर यू। बट इफ यू आर नॉट साउंड, नॉट प्रैक्टिसिंग इट प्रॉपरली, या फिर प्रॉपर केयर नहीं लिया उसकी तैयारी में, तो पेपर आपको हमेशा टफ लगेगा। ओके, सो ये आपके हिंट भी हो गया हाउ टू प्रिपेयर। रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा हूँ, आप कौन से नजरिए से कैसे देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि whether the person is moving or stationary, whether the paper is tough or easy, whether the physics is loving subject or a displeasure, बराबर। ये सारी बातें कैसी है, from where you view, that is important। एक सिंपल सा और एग्जांपल, हमारे बापूजी, वो तो हमेशा हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल रहेंगे फिजिक्स में। हमारे बापूजी हमारे लिए बैंड बजते, ही इज अ वेरी गुड जॉली गुड फेलो, पर जब रिजल्ट्स आते तब ही इज द मोस्ट क्रूअल पर्सन। नालायक, इतने मार्क्स आया, सटाक देके आ भी जा रहा है। वही बापूजी को उनके ऑफिस में पूछे तो ही इज अ हाईली डिसिप्लिन पर्सन, परफेक्ट पर्सन, टारगेट टू टारगेट काम करता है, कंपनी का मुनाफे में ही इज अ मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन। ये उनके ऑफिसर का रिव्यू है। उनके दोस्तों को पूछो तो सबसे बड़ा नटखट, बचपन से ही ऐसा है, सीधा बैठता ही नहीं है,
आपने बोलते सीधा बैठता नहीं है, मेरे को तो कभी हिलने नहीं दिया अपनी जगह से, और ये बोलते बैठता ही नहीं सीधा, क्योंकि वो उनके दोस्तों का नजरिया है, उन्होंने उसको अलग एंगल से देखा हुआ है, ऑफिस में बॉस ने अलग एंगल से देखा है, एंड घर पे तुमने अलग एंगल से देखा हुआ है। तो एक ही पर्सन लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स अपीयर्स डिफरेंट, बराबर है। रेफरेंस फ्रेम वही बात है कि आप कौन से नजरिए से कहाँ से देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी एक ही चीज के, एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए और तुम्हें उसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, लुक टू द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये एक सब्जेक्ट फिजिक्स ही ऐसा है जो आपको इसके बारे में बताता है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भले एक साइड से नहीं मिल रहा हो तो उसको दूसरे से अप्रोच करो, तीसरे से अप्रोच करो, सी द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड देन फाइनली डिसाइड। हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम पर दादागिरी करें, पढ़ो 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 और कुछ नहीं, पर जरा उनके एंगल से तो सोचो। शायद मम्मी ऐसे जिनको पढ़ाई करनी थी पर मौका नहीं मिला, गांव में रहते थे, कभी आगे बढ़ने को नहीं मिला। पापा को आगे बढ़ना था, पढ़ना था, but there was not much economical support, so he had to work, and from village he moved to city to earn more, and now he is earning more, so he is providing you this facility, and वो नहीं चाहते कि तुम्हारी भी वो हालत हो, इसलिए वो तुमको फोर्स करते हैं बेटा पढ़ ले नहीं तो जिंदगी रह जाएगी ऐसे। शायद वो उस टाइम पे पढ़े होते तो अभी कहीं और होते, पर नहीं पढ़े इसलिए ये पोजीशन पे आके हो गए। अभी पेरेंट्स से डिस्कस करोगे तो पता लगेगा, उन्होंने बताया भी होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि बेटा पढ़ ले जिंदगी बन जाएगी, और हम बोलते हैं अरे लंबा तो दो, थोड़ा तो खेलने दो, क्या पूरे दिन पढ़ाई 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 पढ़ाई। सो दैट्स द केस। सो सेम प्रॉब्लम लुक फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स इज डिफरेंट। इसलिए हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं निकलता तो दूसरे एंगल से भी सोचो। पर्सपेक्टिव थिंकिंग इज व्हाट इट इज कॉल्ड, पर्सपेक्टिव थिंकिंग, लुकिंग टू द सेम प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड यही कॉन्सेप्ट है रेफरेंस फ्रेम का। याद रखें, physics is not purely the academic or textbook study, it is the study of your life, creating the philosophy of your life। physics में almost सारे phenomenon आपकी लाइफ की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, तो अगर इसे ध्यान से और सिंसियरली दिल से फॉलो करोगे तो यू क्रिएट योर माइंडसेट फॉर फ्यूचर। जैसे यहाँ पे बात की, कोई भी प्रॉब्लम को एक एंगल से मत देखो, ये बुरा है बुरा है बुरा है, नहीं, उसके दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो टेररिज्म की बात करते हैं। टेररिज्म इज वेरी वेरी फेवरेट हॉट वर्ड। बोले कुछ लोग आतंकवादी है, वो हमारे देश के ऊपर अटैक करके अलग अलग गंदे काम करते हैं, हमारे लिए दे आर द वर्स्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पर जरा उनके एंगल से भी देखो, आतंकवादी बनता कौन है? जो नौजवान पढ़ा लिखा है पर उसको नौकरी नहीं मिली, कहीं और उसका काम नहीं चल रहा है, मुश्किल से महीने पे 2-3-4 हज़ार मिल रहे हैं, उसको कोई आके बोले मैं तेरे को 20,000 देता हूँ, जाके बॉम्ब फोड़ दिखा ले, मैं तेरे को 20,000 देता हूँ, बंदूक लेके गोलियां चला दे, ह्यूमन बॉम्ब बन जा, तेरे परिवार को 1 करोड़ दे देंगे। आज आपने बोलेगा चले मैं कभी 2 लाख 2,000 तो कमाता नहीं हूँ, परिवार को 1 करोड़ मिल जाएगा तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, चलो मैं अपने आप को कुर्बान कर देता हूँ। दैट्स व्हाट इज टेररिस्ट। वो उसका एंगल है, वो अपनी मजबूरी से घुसा हुआ है इसमें। किसी को शौक नहीं है जाके बंदूकें फोड़ने का, बॉम्ब फोड़ने का, लोगों को मारने का, नहीं मजबूर। और जो लोग ऐसे पैसों के लिए नहीं काम करते तो वो लोग भगवान के नाम पे, उनके धर्म के नाम पे, अपना धर्म में बाकी सब बेकार, उड़ाओ सबको, बाकी सबको। दैट इज द सिचुएशन। सो वो अपनी परिस्थिति में, हम अपनी परिस्थिति में, बराबर है। सो दैट्स द एंगल चेंज, एंगल ऑब्जर्वेशन चेंज। सो टेररिस्ट अपीयर्स टू बी ह्यूमन ऑन द अदर साइड। वैसा कैसे सही है? रेफरेंस फ्रेम शोज फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग एंड एट विच एंगल यू आर ऑब्जर्विंग, दैट्स कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम लोग लेंगे चैप्टर नंबर 5 में, व्हेन वी विल स्टडी कॉजेस बिहाइंड मोशन। तो इज इट क्लियर नाउ कि मोशन यानी क्या? चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट बताना जरूरी है, किस कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ही पता लगेगा वेदर द पर्सन इज मूविंग और नॉट। अगर ए के एंगल से देख रहे हो तो बी स्टेशनरी, सी के एंगल से देख रहे हो तो बी इज मूविंग, यानी आप कहां से देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं यार मेरे को तो ऐसा लगा, तो तू कहाँ बैठा था देखने के लिए, तेरे को ऐसा दिखा, तब पूछेगा, रेफरेंस पॉइंट पूछो तो पता लगेगा हकीकत क्या है। ओके क्लियर? सो डोंट बी बायस्ड फ्रॉम वन साइड ओनली, just look to the problem from all different angles. Now let's go further about the concept of motion. Now there is a position that suppose this is a point, तो ये point position हो गया बॉडी का, वो तो वहां से मूव नहीं। अब बॉडी ने अगर यहाँ से मूव किया along this straight line, यानी A से B आया बॉडी along this straight line, तो अगर इसे देखें तो नंबर लाइन बना देते हैं इस पाथ पे, ये नंबर लाइन हो गई, ये उसका 0 बोल देते हैं, नंबर लाइन का 0 लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 वी कैन से दैट पोजीशन ये आ गया। सपोज ये 10 आ रहा है, तो 0 से 10 पे आया बॉडी, अरे 0 से 10 पे आया,
तो ये हो गया बॉडी मूविंग अलोंग अ लाइन, दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन यानी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसमें अगर पोजीशन को स्पेसिफाई करना हो तो पोजीशन के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट काफी है, एक्स ओनली, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 10 ऐसा बोलते हैं, बराबर। इसे इंडिकेट करना हो तो पोजीशन के लिए ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट। बॉडी मूविंग ऑन अ लाइन, पर अगर बॉडी लाइन के बाहर आए तो, अगर बॉडी लाइन के बाहर आए तो, यानी सपोज ये लाइन है, ये ओरिजिन यहाँ इसके ऊपर घूम रहा था, तो वन डायमेंशन बराबर। पर अगर मान लो बॉडी यहाँ पे हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वी टेक अनदर नंबर लाइन एंड पुट इट परपेंडिकुलर टू द गिवन नंबर लाइन सच दैट बोथ द ओरिजिन्स कोइंसाइड, बोथ द ओरिजिन्स कोइंसाइड। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ सिर्फ एक्स एक्सिस, ओके। यहाँ एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस आ गए। नाउ वी कैन ट्रेस द पोजीशन कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका पोजीशन हो गया एक्स वाई, बराबर है। ये केस कौन सा हो गया, टू डायमेंशन का, इज कॉल्ड द केस ऑफ टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल मोशन। अगर वन डायमेंशनल मूव कर रहा है तो ऑन लाइन है, टू डायमेंशनल तो यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, चार क्वाड्रेंट में कहीं पे भी जा सकता है, एंड दैट्स कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। सो प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल। इसके अंदर पोजीशन अगर लोकेट करना हो तो वी रिक्वायर अ कोऑर्डिनेट पेयर एक्स वाई, वी रिक्वायर कोऑर्डिनेट पेयर एक्स वाई। तो ये हो गया टू डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन। अब हम जो टीवी पे देखते हैं या मूवी देखने जाते हैं वो सारे टू डायमेंशन होते हैं, क्योंकि पर्दे के ऊपर ही सारी चीजें चल रही है, नथिंग कम्स आउट। अगर यूं बाहर आता तो, इस प्लेन से बाहर आता तो, जैसे हमने दो एक्सेस लिए परपेंडिकुलर 1 और 2, ये ग्राफ वाला सिस्टम हो गया। पर अगर मान लो ये पॉइंट, ये पार्टिकल यहाँ से यूं बाहर होता तो, ये बॉडी अगर यहाँ बाहर होता तो यू कैनॉट लोकेट इट इन द प्लेन। तो उसे लोकेट करना हो तो क्या करेंगे, एक और एक्सिस लेंगे, एक और नंबर लाइन लेंगे, दोनों को परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर, एंड बी लाइक दिस। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड एक्सिस हो गया, जो हमने देखा था वेक्टर्स में, एक्स वाई एंड द थर्ड वन बिकम्स द जेड एक्सिस। उसको इंडिकेट करना तो वी शो इट बाय दिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई, एंड ये तीसरी एक्सिस हम लोग थर्ड यूं बता रहे हैं, जेड एक्सिस। तीनों नंबर लाइन के ओरिजिन कोइंसाइडिंग है। तो बोला एक्सिस कहाँ गई, वो नंबर लाइन ये रहा, वाई एक्सिस कहाँ गई, वो नंबर लाइन ये रहा, जेड ये जेड एक्सिस कहाँ है, तो ये नंबर लाइन है, तीनों के ओरिजिन कोइंसाइडिंग है। अब जेड एक्सिस कहाँ पे, तो एक्स एंड वाई के परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर लाइक दिस, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ बोर्ड लाइक दिस, बट दिस वी कैन नॉट शो इन दिस बोर्ड। तो इस थ्री टाइम, ये तीन हो गए, 1 2 और 3, 3 डायमेंशन हो गए। पर इसको इंडिकेट करने के लिए वी शो द जेड एक्सिस दिस वे। इट डजंट मीन जेड एक्सिस इन द प्लेन having at some angle with x axis, no, it is actually like this, we represent it this way। तो अब से हम लोग 3 डायमेंशन को यू रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया 3 डायमेंशन। तो बोला कैसा, वो मूवी देखने जाते हैं 3D आता है, वही चीज है, हाँ बिल्कुल वही। उसमें क्या होता है, मान लो उसमें अगर किसी ने गोली चलाई तो बंदूक की गोली सीधी तुम्हारे मुंह पे आती है, तुम बोलते हो बाप रे, होता है कि नहीं ऐसा। सो दैट इज द केस के प्लेन से निकल के बाहर आई गोली। 2 डायमेंशन मूवी में सब कुछ स्क्रीन पे चला होता है, 3 डायमेंशन तो हमारी तरफ आ रहा है, और इट्स कमिंग ऑन द थर्ड डायमेंशन। सो दैट्स द केस ऑफ 3 डायमेंशन, ओके। उसके लिए बोलते हैं इन अ स्पेस। 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन फॉर्म्स अ लाइन, 2 डायमेंशन फॉर्म्स अ प्लेन, एंड 3 डायमेंशन फॉर्म्स अ स्पेस। तो मतलब ये 3 डायमेंशन को स्टडी करना तो क्या करने का, सर ये 3 डायमेंशन कैसे देखेंगे, अरे आराम से घर का कोई कॉर्नर पकड़ लो, घर के कॉर्नर में देखोगे तो एक एक्स एक्सिस बनेगी, दूसरी वाई एक्सिस बनेगी, एंड ये तीसरी जेड एक्सिस हो गई। अरे घर पे कॉर्नर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अपने टेबल का कॉर्नर पकड़ो, उसके बाजू में यू नोटबुक लगा दो, तो ये एक्सिस हो जाएगी, यू वाई एक्सिस हो गया, न्यू जेड एक्सिस हो जाएगी। नोटबुक का जॉइंट है वो यूं लगा देना वहाँ पे, ओके। सो दैट बिकम्स 3 डायमेंशन अगेन, क्लियर। तो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन, इट फॉर्म्स अ स्पेस, एंड इधर इसमें अगर पोजीशन को लोकेट करना हो तो 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, 3 triplets of is required x y z, and that forms position of the particle in 3 dimension। position of particle important है, इसलिए उसको यहाँ पे ले रहे हैं कि 1 dimension है straight line, 2 dimension है plane, 3 dimension है space। चैप्टर नंबर 3
टॉक्स अबाउट वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओनली, यहाँ पे सिंगल कोऑर्डिनेट रहेगा। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 टॉक्स अबाउट मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर नंबर 4 टॉक्स अबाउट मोशन इन अ प्लेन, तो वहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे वेक्टर्स की एंट्री हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 में वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने वेक्टर्स को पहले पढ़ लिया है। दोनों स्टडी सेम है, खाली सिंगल कोऑर्डिनेट से डबल कोऑर्डिनेट में जाना है, वन लाइन से प्लेन में जाना है। एंड साथ साथ में हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 4 में इसको भी स्टडी कर लेंगे। ये दिया नहीं है हमारे पास, मोशन ऑफ प्लेन है चैप्टर नंबर 4 पर, हम लोग इसको भी साथ साथ में पढ़ लेंगे। जैसे 2 कोऑर्डिनेट्स वाले केस है पोजीशन के, वैसे ही 3 कोऑर्डिनेट्स वाले भी ले लेंगे। 3 डायमेंशनल मोशन आल्सो विल कवर इन चैप्टर नंबर 4। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 में सिंगल कोऑर्डिनेट है, इसलिए वहां पे वेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्योरली स्केलर है, नो डायरेक्शन नथिंग। जबकि इस 2 डायमेंशन में विल रिक्वायर वेक्टर फॉर्म। ओके, तो 2 डायमेंशन प्लेन में मोशन एंड स्पेस में मोशन के लिए रिक्वायर वेक्टर जो चैप्टर नंबर 4 से शुरू होता है, वो हमने यहाँ पहले पढ़ लिया ऑलरेडी। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। चैप्टर नंबर 3 विल बी डीलिंग विद वन डायमेंशनल मोशन, दैट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर चैप्टर नंबर 4 डीलिंग विद 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन प्लेन, एंड उसी में साथ साथ में 3 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्पेस। सर इससे आगे 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल ऐसा होता है। हम तो हमने तो एक जगह पे देखा था 8 डायमेंशनल, 8D मूवी। तो 8 डायमेंशन यानी क्या, वो सारी बातें फिजिक्स से अलग है। हाँ, आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में n डायमेंशंस, इनफाइनाइट डायमेंशंस की भी बात की हुई है, पर वो हमारे लेवल से बाहर है। हम लोग तो सिर्फ 3 डायमेंशन तक की बात करेंगे, उससे आगे नहीं करेंगे। फॉर अ बॉडी नॉर्मली वी शो पोजीशन बाय 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z। ये कहाँ से है, तो विद रिस्पेक्ट टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड तीसरा z एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। तो यूजुअली ओरिजिन O is taken as reference point. Origin O is taken as reference point. एंड यहाँ पे पार्टिकल P पे जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, पार्टिकल Z पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y, z, तो ये हो गया पॉइंट P with coordinates x, y, z is the position of particle. Position of particle कहाँ से, with respect to given origin. So here origin works as a reference point. तो हम लोग जो बातें करेंगे सब में origin is our reference point, उसके रिस्पेक्ट में सारी बातें करेंगे, बराबर है। Further, if all 3 coordinates change, all 3 coordinates same, अगर तीनों 3 कोऑर्डिनेट सेम मेंटेन रहते हैं तो क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड में से कुछ भी चेंज नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, द बॉडी इज स्टेशनरी, उसको बोलेंगे स्टेशनरी बॉडी। इफ नन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, तीनों 3 सेम रहे, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स रिमेन सेम, तो पार्टिकल वहां से ही लेगा नहीं, क्योंकि पोजीशन कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहे, बराबर है। तो द बॉडी इज स्टेशनरी। इफ एनी वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, खाली एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, या खाली एक्स चेंज होता है, तो एक्स चेंज हो तो यहाँ पे चेंज होगा, यानी पार्टिकल न्यू जा रहा है। खाली वाई चेंज हो रहा हो तो पार्टिकल न्यू जा रहा है, खाली जेड चेंज हो तो पार्टिकल न्यू जा रहा है। यानी इफ एनी ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, एनी वन ही बोलते हैं, चलो ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजिंग, ओनली वन, या एक्स या वाई या जेड, ओनली वन, या एक्स या वाई या जेड changes, then it is said that body is moving along that line, so it's one dimensional motion, one dimensional motion, or we can say motion in a line, motion in a straight line। कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो खाली या x या y या z, अगर खाली x चेंज हो रहा है तो इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, अगर ओनली y चेंज हो रहा है तो मूविंग अलोंग y एक्सिस, अगर ओनली z चेंज हो रहा है तो मूविंग अलोंग z एक्सिस, ये हो गया। अगर मान लो 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, 2 कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग, यानी एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर एक्स जेड, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, तो इन दैट केस वी से दैट इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन। क्योंकि उस केस में अगर मान लो खाली एक्स वाई चेंज हो रहे हो, तो एक्स वाई चेंज हो मतलब एक्स वाई प्लेन में घूम रहा हो कहीं ना कहीं, तो दैट्स केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, और वी कैन से मोशन इन अ प्लेन। And if all the 3 coordinates are changing, all 3 coordinates changing, all 3 coordinates changing, okay, all the 3 coordinates are changing, यानी x y z तीनों 3 चेंज हो रहे हैं,
एक्स बी वाई बी जेड बी, एंड इट इज सेड दैट इट इज अ 3-डायमेंशनल मोशन, यानी कि मोशन इन स्पेस। ओके, ये 3-डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसमें एक चौथा कोऑर्डिनेट भी आता है, कौन? एक्स वाई जेड एंड टाइम टी। चौथा कोऑर्डिनेट हम लेते हैं टाइम टी। ये टाइम हो गया, ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये 3 पोजीशन बताते हैं, ये टाइम बताते हैं। इस टाइम पे कौन सा पोजीशन? तो टाइम तो हमेशा चेंज होगा ही, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू चेंज। ऑल द 4 सेम कभी नहीं होंगे। नो 2 पार्टिकल्स विल हैव ऑल द 4 कोऑर्डिनेट्स सेम, एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट तो अलग होगा ही। टाइम तो कंटिन्यूसली मूव करता ही रहेगा, टाइम रुक जाए वो नहीं चलेगा। मोशन में टाइम तो चलता ही रहेगा, पर बाकी 3 ना चले तो स्टेशनरी बॉडी, यानी किसी भी टाइम पे देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट वही का वही रहता है, तो बॉडी स्टेशन। किसी भी टाइम देखो अगर एक्स ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 1-डायमेंशनल मोशन। किसी भी टाइम पे कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन। 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो मोशन ऑफ प्लेन। 3 कोऑर्डिनेट चेंज है विद टाइम, ये हो गया, बराबर है। तो ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड ये टाइम कोऑर्डिनेट, यानी हमारे लिए जो सिस्टम है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस टाइम सिस्टम है। हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड एट टाइम टी। क्यों? क्योंकि टाइम का भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया रिगार्डिंग पोजीशन एंड उसके बेस पर मोशन की बातें। आ गया अगली बार।